Good morning, everyone, and welcome to the class. Today we will start this chapter: weavers, iron smelters, and factory owners. And in this chapter, we are going to see how we will focus only on two industries, that is, a textile and iron and steel. Okay, so both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. And this the production of cotton textile made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. As I told you in the previous class, that industrial revolution, the impact of industrial revolution can be seen from these two industries only in the initial period, that was textile and iron and steel. And the cotton textile which was made in Britain, that made the country foremost industrial nation in the 19th century. And then iron and steel industry was also started in Britain from 1850s. And Britain then came to be known as workshop of the world, because iron and steel, we can say, it is the backbone of any industry. And in Britain, this industry was flourishing at a very high rate, so it was started to be called as workshop of the world. And we see that Britain, in the process of industrialization, started in Britain in 19th century. Okay, in the starting of the 19th century. And we find that there is close connection with colonization of India and the industrialization of Britain. We all know that East India Company was very much interested in trade, है ना. It was the main occupation of this East India Company was trade, and because of trade, it came India only for the purpose of trading. But some due to some circumstances, we can say, this trading company started to occupy the territory of the country. And the pattern of trade also changed over the decades. We find that in the late 18th century, the company started buying goods in India and exporting them to England and Europe, है ना. सो इन दिस वे इट वॉज मेकिंग प्रॉफिट, कि यहाँ से चीज़ें खरीद के वो एक्सपोर्ट करती थी इंग्लैंड और यूरोप में, जहाँ पर इन चीज़ों की बहुत डिमांड थी, लाइक कॉटन और स्पाइसेस, है ना. तो ये तो हो रहा था, ठीक है. बट व्हेन देयर वाज ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन ब्रिटेन, what we find that the British industrialists, they started to see India as a market for their industrial product. जो पहले का जो पैटर्न था, 18th सेंचुरी का जो पैटर्न था, वो 19th सेंचुरी में टोटली चेंज हो जाता है. 18th सेंचुरी में यहाँ की चीज़ें ब्रिटेन जा रही थी, यहाँ कम प्राइस में खरीद के उसको ब्रिटेन में बेचा जा रहा था ज़्यादा प्राइस में, दैट इज़ ट्रेडिंग, है ना. तो इसमें ट्रेडर्स का फ़ायदा हो रहा था. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट में थी. लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, जब 19th सेंचुरी स्टार्ट होता है, 19th सेंचुरी के मिड आते आते इस तरह के सिचुएशन होते हैं कि जो इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट के फॉर्म में देखा जाने लगा, है ना. कि जो ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इसका यही मतलब होता है कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. जिन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसको रेवोल्यूशन का नाम दिया गया. क्यों बढ़ा? क्योंकि बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, है ना. तो अब जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होगा तो क्या चाहिए, उन चीज़ों को बेचना होगा. ब्रिटेन में तो बेच रहे हैं, आसपास की कंट्रीज़ में भेज रहे हैं. अब उनको मार्केट चाहिए था जहाँ पर कि वो इन सामान को बेच सकते. तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे स्टार्टेड सेंडिंग देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स टू इंडिया, बिकॉज इंडिया उनका कॉलोनी था. तो इंडिया में लोगों को वो चाहते थे कि हमारी चीज़ों को बेचे और लोग हमारी चीज़ों को खरीदे, है ना.
सो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो थे ब्रिटेन में वो इंडिया में आने लगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज थे, जो हमारे इंडिजिनस क्राफ्ट एंड इंडिजिनस इंडस्ट्री थे, उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें ब्रिटेन से आ रही थी वो मशीन से बनी थी। तो मशीन से बनी हुई चीज़ें क्या हो जाती हैं, सस्ती होती हैं। और जब जब जिन चीज़ों को हम हाथों से बनाते हैं उनके प्राइस महंगे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बट ब्रिटेन में हो गया था। तो ब्रिटेन से जो सामान आ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता था और लोग उसी को खरीदना चाह रहे थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये बात है, इसको हम कहेंगे 18th सेंचुरी की बात है, 1700 मिड 18th सेंचुरी 1750। क्या हुआ 1750 की क्या बात है, हम अभी देख रहे हैं कि हाउ डिमांडिंग वाज इंडियन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड मार्केट। ओके, इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, तो 1750 के अराउंड क्या हुआ, ये 50 है, 1750, यू जस्ट रिमेंबर द टाइम। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तब जाकर के जो ब्रिटिश थे उन्होंने बंगाल पे अपना कब्जा किया था। उसके पहले बंगाल में देवर जस्ट अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था, चीज़ों की खरीदी करते थे, बिक्री ले जाके उसको शिप से वो ब्रिटेन पहुंचता था, बस इतना ही कर रहे थे। तो 1750 में हम क्या देखते हैं, इंडिया जो था वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का। ठीक है, इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। एंड इंडियन टेक्सटाइल जो थी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसको बहुत अच्छा माना जाता था, क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती थी, क्राफ्टमैनशिप जो बनाने का तरीका होता था वो बहुत ही अच्छा था, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था पूरी दुनिया में। एंड इनका जो ट्रेडिंग होता था, इन टेक्सटाइल जो कॉटन टेक्सटाइल जो इंडिया की थी, वो जो ट्रेड किया जाता था कहाँ होता था, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया आज का जो इंडोनेशिया, मलेशिया है, ये सारे आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। तो उस समय उनका नाम था जावा, सुमात्रा, पेनांग। ठीक है, इन सारी कंट्रीज़ में इंडिया से जो कॉटन के जो टेक्सटाइल थे उसको ट्रेडिंग होती थी। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के अलावा वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया। वेस्ट एशिया क्या हुआ, इधर जो हम जिसको ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये वाला जो पोर्शन हुआ, और सेंट्रल एशिया में इंडिया के प्रोडक्ट जो थे वो जाते थे। ठीक है, अब क्या हम देखते हैं कि 16th सेंचुरी से क्या होता है कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो है वो इंडियन टेक्सटाइल को खरीदना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल जो थे जो प्रोडक्ट्स होते थे उसको वो यहाँ पे खरीदती है और उसको यूरोप में बेचती है ना। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो थी वो इंडियन टेक्सटाइल को खरीद के उसको यूरोप में बेचने का काम करती है। और काफ़ी हम ये भी देखते हैं जो डिफरेंट इंडियन टेक्सटाइल्स थे उनका अलग अलग नाम भी था, और इस नाम जो उनका नाम पड़ा था उसके पीछे कुछ स्टोरी भी थी। तो हम लोग उन स्टोरीज़ को देखते हैं कि कैसे किसी पर्टिकुलर कपड़े का क्या जो नाम पड़ा वो नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे क्या स्टोरी है। तो एक जो हमारे कपड़े जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज मसलिन। ठीक है, अब ये जो मसलिन है ये क्या है, ये एक वर्ड है दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी, बहुत ही पॉपुलर हुआ ये वर्ड, ये मसलिन कपड़ा जो था मसलिन। इसमें हम क्या देखते हैं, ये मसलिन नाम क्यों पड़ा, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनको ये जो फाइन कॉटन क्लोथ है
जो कि इंडिया से ही लेकर के अरब मर्चेंट्स जा रहे थे, वो मोसुल नाम की जगह थी, जो कि आज का इराक है। इराक में मोसुल नाम की जगह में पहली बार यूरोपियन ट्रेडर्स ने उस फाइन क्वालिटी के कॉटन क्लोथ को देखा। ठीक है, तो इसी मोसुल के नाम पे, मोसुल जो जगह का नाम है, फ्रॉम दिस मोसुल दिस मसलिन कम्स, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने सबसे पहले मोसुल में इस कपड़े को उन्होंने छुआ, उन्होंने देखा, उन्होंने जाना कि ऐसा भी कॉटन होता है, इतनी फाइन क्वालिटी का भी कॉटन होता है। तो इस जगह के नाम पे ये मुस्लिम नाम पड़ गया। ठीक है, और आगे और भी देखते हैं। जैसे एक और कपड़ा था जिसका नाम था कालिको। अब हम क्या देखते हैं कि जो पोर्टुगीज थे, सबसे पहले इंडिया में जो आने वाले ट्रेडर्स थे, है ना, दे वर पोर्टुगीज हु लैंडेड इन कालीकट, जो कि केरल के कोस्ट में है ना। इंडिया का जो साउथ वेस्ट में केरल है, केरल का एक कोस्ट है कालीकट। तो सबसे पहले पोर्टुगीज जो थे वो कहाँ आए थे? वो इसी कालीकट में आए थे। ठीक है, अब ये जो कालीकट जो था वो केरल के कोस्ट पे था। ठीक है, अब कॉटन टेक्सटाइल जो ये यहाँ से पोर्टुगीज जो थे वो कालीकट से जो कॉटन टेक्सटाइल यूरोप ले जाते थे, उस कॉटन टेक्सटाइल को उन्होंने क्या नाम दिया? कालीको। ये इसी कालीकट से ये नाम पड़ा है। कालीकट से जो कपड़ा आ रहा है, कौन सा कपड़ा है? दैट इज नोन एज कालीको। ठीक है, तो जो भी कॉटन टेक्सटाइल्स इंडिया से जा रहे थे उन सबको क्या किस नाम से जाने लगा? कालीको के नाम से। तो इन दिस वे दिस इज द थिंग विच आई टोल्ड यू कि हर कपड़े के नाम के पीछे एक स्टोरी है। इसी तरह से और भी बहुत सारे कपड़े थे जिनका एक डिफरेंट नेम होता था, है ना। और इसमें हम एक आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो एक वो दिया हुआ है, ऑर्डर बुक है, एक पेज है, पेज ऑफ द ऑर्डर बुक है, जिसमें ये बताया गया है कि किन किन कपड़ों के कितने कितने ऑर्डर हैं, है ना। इसको अगर आप थोड़ा माइन्यूटली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें डिफरेंट कपड़ों के जो नाम हैं वो दिए गए हैं, है ना। So this page which is a part of an order book, and this we see the East India Company sent to its representative in Calcutta in 1730. ये order book जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कि जो कैलकटा में थे 1730 में, कि उनको ये कपड़े चाहिए। ठीक है, ऑर्डर बुक है कि हमें उन्होंने ऑर्डर दिया है कि ये कपड़े हमें चाहिए। 1730 की बात है। तो उस ऑर्डर में 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लोथ का ऑर्डर था। उस पेज में कितने ऑर्डर थे? 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लोथ के लिए ऑर्डर दिए गए थे। और अगर आप उस ऑर्डर बुक को देखेंगे अच्छे से तो उसमें आपको 98 वेराइटी के कॉटन और सिल्क क्लोथ्स की बात की गई है। मतलब 98 टाइप्स के कॉटन और सिल्क क्लोथ्स हुआ करते थे, और इनको इनके कॉमन नेम से जाना जाता था। दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड एज पीस गुड्स, है ना। जो वुमेन क्लोथ होते थे जो कि 20 यार्ड लॉन्ग होते थे और 1 यार्ड वाइड होता था। लंबाई जिसकी 20 यार्ड और चौड़ाई 1 यार्ड होती थी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पीस गुड्स। ठीक है, तो इस तरह से बहुत तरह तरह के जो कपड़े थे वो इंडिया में प्रोड्यूस होता था, और वो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी बाहर के देशों में, खास करके यूरोप की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो अब इसमें एक और तरह के कपड़े की जिक्र आती है जिसका नाम है छिंड्स। अब ये छिंड्स वर्ड कहाँ से आ रहा है? ठीक है, छिंड वर्ड जो है वो कहाँ से आ रहा है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी वर्ड छींट। हिंदी में अगर आप हालांकि
छींट, छींट का मतलब क्या होता है? प्रिंट, प्रिंटेड जिसको हम कहते हैं, प्रिंटेड क्लोथ जिस पे फ्लावर्स, लीव्स, ये सब प्रिंट किया हुआ होता है, उसको हम कहते हैं प्रिंटेड क्लोथ्स, है ना। तो उसी को हिंदी में छींट कहते हैं, छींट वाला, छींट वाला कपड़ा। आप हो सकता है आपके घर में मम्मी इस तरह के वर्ड्स, पापा इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते होंगे। हम लोग, हमारे घर में भी ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, छींट वाला कपड़ा। जो पुराने ज़माने के लोग हैं, मम्मी नहीं तो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इस तरह के वर्ड्स खुद से बिल्कुल यूज़ करते होंगे। छींटदार, है ना, छींट वाला शर्ट, छींट वाला साड़ी, दिस इज़ छींट। छींट का मतलब प्रिंटेड, जैसे किसी साड़ी में, किसी कपड़े में ये जो प्रिंट है, फूल बनी हुई है, पत्ती बनी हुई है, ये क्या है? दिस इज़ छींट। इसको हम छींट कहते हैं। पूरे कपड़े में इस तरह के फ्लावर्स बने होना, तो दिस इज़ कॉल्ड छींट। तो छींट जो थी, हिंदी में जो छींट थी, वो उसी को दे आर ऑल्सो सेइंग छींट, बट वो छींट जो है वो क्या बन जा रहा है? छिंट्स। थोड़ा उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, तो ये छिंट्स बन गए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम 1680s से देखें तो वहाँ पर यूरोप में एक बिल्कुल ही क्रेज़ी हो जाते हैं लोग प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के लिए, है ना। और जो फ्लोरल डिज़ाइन था, जो फाइन टेक्सचर था, जो, और साथ ही साथ सस्ती भी, प्राइस भी कम होती थी, इस कारण से यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और यहाँ तक कि अगर देखें तो इंग्लैंड में जो क्वीन विक्टोरिया थी, वो खुद ये इंडिया के फैब्रिक्स जो इंडिया से जाते थे, वही कपड़े वो पहनती थी, उनको इतना पसंद था। और ये क्रेज़ था, सभी ब्रिटिश जो भी रिच क्लास था, उनके बीच में एक बहुत बड़ा क्रेज़ हुआ करता था, ठीक है। और इसी तरह से और भी वर्ड्स हम देखते हैं, जैसे हमने अभी तक 3 देखा, मसलिन, कालिको, छींट्स। एक और वर्ड है, दैट इज बंधना, ठीक है, बंधना। अब व्हाट डज इट मीन, इसका ये कहाँ से आ रहा है वर्ड? ये है जो ब्राइटली कलर्ड और प्रिंटेड स्कार्फ्स होते हैं, जैसे हेड के लिए या नेक के लिए जो ब्राइट कलर्स के प्रिंटेड स्कार्फ होते हैं, उन्हीं को हम बंदना के नाम से जान रहे हैं। ओरिजिनली ये जो टर्म बंदना आया है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? इट इज़ डिराइव फ्रॉम बांधना, टाई करना, ठीक है, बांधना। बांधना जो है ना, उससे ये बंधना निकला है। अब ये बांधना क्या होता है? यू मे बी अवेयर, आपको पता होगा, टाई एंड डाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्ट है, जिससे कपड़ों में कपड़ों को जैसे कि उसके बीच में कुछ छोटे दाल वाल डाल करके ऐसे फिर उसको टाई कर दिया जाता है धागे से, ठीक है। और फिर उसको ऐसे छोटे छोटे थोड़े थोड़े दूर पे पूरे में बना दिया जाता है। फिर उसको कलर में, ये टाई हो गया, बांध दिया धागे से, फिर उसको डाई किया जाता है, उस पर कलर चढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पर वो रस्सी लगी होती है ना, धागे, नॉट रस्सी, धागा, पतला धागा जहाँ पर लगा होता है, वहाँ पर वो कलर नहीं पहुँच पाते, क्योंकि बहुत टाइट से उसको बांधा जाता है। तो वो पोर्सन जो है वो कलर नहीं हो पाता है, बाकी पोर्सन कलर हो जाता है। तो ये, इसी को हम कहते हैं टाई एंड डाई, या आजकल इसे बांधनी भी कहते हैं। तो इसी का नाम है बंधना। ये आपको ऐसे पैटर्न में आता है, जैसे ये आपका कपड़ा है, ठीक है, इसमें जो टाई जो किया जाता है उससे बड़ा खूबसूरत पैटर्न आता है, क्योंकि पूरा वो बंद नहीं करता, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं वहाँ पे कलर आ पाए, थोड़े थोड़े कलर चले जाते हैं, है ना। और बीच वाला जो है वो तो कलरफुल हो जाता है, ऐसे जो बंधा रहता है। तो इससे ये टाई एंड डाई से ये बंधना जो है वर्ड निकला है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि हर वर्ड के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। कुछ और भी क्लोथ्स थे जिनको हमको दिखते हैं, जिनका नाम हमें ऑर्डर बुक में नज़र आता है,
और ये जो क्लोथ्स हैं इनका नाम पड़ा है उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन पे, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं, लाइक कासिम बाजार, पटना, कैलकटा, ओडिशा, चारपुर. These are the names of the clothes which is associated with the origin of place of origin. ठीक है. और इतना ज़्यादा जो इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, छिंड्स, बांदना, मसलिन, कालिको, ये क्या इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे यही समझ में आ रहा है कि इंडियन टेक्सटाइल जो थे वो यूरोप में कितने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, है ना. दे वर सो मच पॉपुलर. एंड इन योर बुक यू विल सी कि टाई एंड डाई का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देख के आपको समझ में आएगा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और वो है इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट. So in this way we find that Indian textile was very much in demand in European market, but all was not well. Why? Because we find that in England there were people who were engaged in the production of clothes, है ना. And these people they were very much worried by the popularity of Indian textile, because there was demand of Indian textile, people were purchasing Indian textile. So the fabric which was produced by the people who were living in Britain, that was not in demand. So these people were in loss. The British textile producers, है ना, they were in loss. So these people, the British textile producers, they started protesting against the import of Indian cotton textile. उन्होंने ये कहा कि नहीं, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का इम्पोर्ट होना ही नहीं चाहिए, उस पर बैन लगा देना चाहिए. वो इस बात की डिमांड करने लगे कि इंडिया से कपड़े आने ही नहीं चाहिए, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों को वही खरीदना होगा. और what happened that in 1720 the British government enacted a legislation. एक कानून बना दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जिसमें ये कहा गया कि प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जो इंडिया से आता था, दैट वाज कॉल्ड छिंड्स. छिंड्स जो है उसका इंग्लैंड में यूज़ को बैन कर दिया गया. ठीक है. और इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? कालिको एक्ट. दिस एक्ट इज नोन एज कालिको एक्ट. कब बना था ये? 1720 में. और इसमें क्या किया गया था? जो इंडिया से आने वाली प्रिंटेड टेक्सटाइल थी, यानी कि छिंड्स, उस पर बैन लगा दिया गया कि वो ब्रिटेन में यूज़ नहीं किया जाएगा. अब ये जो बैन लगा, उससे क्या हुआ कि इंडिया के तो जाना बंद हो गया. अब इंग्लैंड में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो उस समय बिल्कुल जिसको हम कहें कि बिल्कुल स्टार्ट हो रहा था. इट वॉज इन द स्टार्टिंग ऑफ इट्स लाइफ. और वो इंडियन टेक्सटाइल के साथ compete नहीं कर सकता था, क्योंकि इंडिया से जो टेक्सटाइल जा रहा था उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी. तो वो इंडियन टेक्सटाइल के साथ compete नहीं कर सकते थे. और इस कारण से जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स थे, टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे, उनको एक सिक्योर मार्केट चाहिए था जहाँ की इंडिया से आने वाले सामान ना हो, इंडिया से आने वाली टेक्सटाइल पर रोक लग जाए, है ना. और इस कारण से ही ये हम देखते हैं कि ये कालिको जो एक्ट आया वो आया, उसको लाया गया. और उसके अलावा हम ये देखते हैं गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन के अंदर कालिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है वो एग्जिस्टेंस में आई. ठीक है. और इंडियन डिज़ाइंस को
इस कालिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री में वो नकल की जाने लगी। ठीक है, कालिको ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इस कालिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री को, और यहाँ पर इंडियन डिज़ाइंस को इमिटेट करके, नकल करके बनाया जाने लगा। ठीक है, जो कपड़े इंडिया से ही जाते थे, मसलिन जो कपड़े होते थे, उसी पे ये डिज़ाइंस बनाए जाने लगे। अब हम क्या देखते हैं, जो इंडियन टेक्सटाइल के साथ जो कंपटीशन हो रहा था, उसी में एक और चीज़ जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स थे उनको एक और एडवांटेज मिलता है, वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का। ठीक है, 1764 में क्या होता है कि स्पिनिंग जेनी जो है वो इन्वेंट किया गया, जॉन के ने इन्वेंट किया। ठीक है, 1764 जॉन के स्पिनिंग जेनी। अब ये स्पिनिंग जेनी क्या है? ठीक है, स्पिनिंग जेनी जो है वो एक मशीन है, और जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल्स, जिस पर थ्रेड ऐसे ऐसे घूमता है, स्पिन होता है, उसको स्पिंडल कहते हैं। तो एक सिंगल जो वर्कर था वो कई सारे स्पिंडल्स को एक साथ ऑपरेट कर सकता था। और जैसे कि जब इन द एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग जेनी जब मैनुअली काम होता है तो एक वर्कर जो है वो एक ही स्पिंडल को वो ऑपरेट कर सकता है। लेकिन जब स्पिनिंग जेनी जो मशीन आई, उसके हेल्प से क्या हो रहा है कि सिंगल वर्कर जो है वो कई सारे स्पिंडल्स को एक साथ ऑपरेट कर रहा है ना। तो इससे क्या होगा, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई, है ना, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। और इसी के साथ एक और इन्वेंशन होता है, वो है स्टीम इंजन का। ठीक है, स्टीम इंजन वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड। ओरिजिनली तो स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया था, लेकिन यहाँ पर आप नाम देखेंगे दिस रिचर्ड आर्कराइट का नाम है। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट। तो ये जो जेम्स वॉट ने जो स्टार्टिंग की थी, इसको इस तरीके के फॉर्म में बनाना कि वो बाजार में बिक सके, ये रिचर्ड आर्कराइट ने किया। ठीक है, तो रिचर्ड आर्कराइट जो थे उन्होंने दिस स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया, जिससे कि कॉटन टेक्सटाइल की जो वीविंग इंडस्ट्री थी उसमें बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आ गया। क्लोथ जो है अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और सस्ते में, चीपली, है ना, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई और चीप में ये प्रोडक्शन होने लगा। तो ये जो चीज़ें हुई, एक तो इंडियन टेक्सटाइल को बैन किया गया, इंडियन जो प्रिंट होते थे उसको इमिटेट किया गया, और उसके बाद ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, इन सब वजह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो कॉटन का प्रोडक्शन था वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। और ये सब कुछ जो हुआ उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि हमारे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी पड़ता है। So this is all for today. Okay, we will continue with this in the next class.